Hi, good evening, everyone. Okay, I remember that we have started with. I hope I'm audible, right? Make them clear, na audible. Yes, sir. Fine. We started with functions, na? है ना? So I think हम लोग ने sum किया and then we also did some data consolidation भी किया हमने. Data consolidations we can also do using the Power Query. वो भी हम लोग करेंगे, but uh, अभी स्टेज इनिशियल स्टेज है थोड़ा सा उसके लिए. But bringing together all your sheets, that is called data consolidation. एक ही जगह पे सबको लाने का है ना. तो वो हम लोग we did with 3D sum, but it was manual formula था अपना वो. Then we also did using the data में जाके consolidations. Okay, this is also one method, but बहुत सारे sheets रहेंगे तो क्या करेंगे आप? So you cannot just click on each and every sheets, right? So we can have a connections and Power Query में जाके एक जगह पे सबको जमा करके I can make one sheet out of 10 sheets, and that one sheet will be nothing but the collaboration of all my sheets. मगर एक बात याद रखना, all sheets should, why you want to bring together, because all are having the similar data. तो ही उसका कुछ मतलब है. डेटा कंसोलिडेशन का मतलब ही होता है. अभी एक ईस्ट है एक वेस्ट है, तो why you will mix rice and wheat together? You will not do that, right? तो बस इसीलिए होता है वो. राइस को राइस के साथ ही मिक्स करने का ऐसा कोई मजा आएगा उसका. तो चलो, let's start with the functions what we are remaining. So I finished with some functions, right? Now sum जो है, अब एक एक करके फटाफट देखते हैं. अभी sum जो है वो सो तो टोटल मारता है, right? Sum will take the total. Okay, that's great. Sum will take only one argument. याद रखना, sum एक ही argument लेता है, that is please give me the values, and the moment you start giving him the values, that is numbers, he will take the total, and the values can be given something like this, and sum will take the total from here. Fine. Now what if I want to take the total of my sales? इसको sales पकड़ के चलते हैं अभी हम लोग. But I just want the sales done from India. ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, बात निकली है टोटल की. तो जब टोटल की बात निकलेगी, then there can be many questions on total also. So you can raise the questions, right? कि सर टोटल तो आपने कर दिया, लेकिन मेरे को सिर्फ इंडिया का टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे आप लोग अभी? Let's say if you want to take only Indians का टोटल, हो सकता है कि you want to take only the total of my pencil का sales, you want to take the total of my potato का sales, you want to take only the total done by the executive called doctors को जो माल बेचा हुआ है. टोटल की बात आ रही है, so I have now conditional total. Okay, मानसा, सम फंक्शन ही कर पाता है. सम का मतलब टोटल है, मगर सम will only do the total of the given range. Sum cannot do the total of as per your conditions. इसके लिए इसका दूसरा भाई ने जन्म लिया है. इसी परिवार में इसका दूसरा भाई है जिसके पास मोर पावर है. बोथ द ब्रदर्स बिलोंग टू द सेम सम फैमिली. जिन लोग का बाप दादा लोग सिर्फ सम ही करते आए हैं. तो इसका जो दूसरा भाई है जिसका नाम है सम इफ. ओके, दोज हु आर अवेयर वो लोग सो जाओ, और जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग ध्यान से सुनो. सम इफ, इस नाम में ही इफ है. इफ का मतलब अगर. अगर मतलब अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. तो सम इफ, जहां भी अगर लगा वहां शर्त लगती है. जहां भी अगर लगता है वहां पे शर्त लगती है. सो सम, अगर क्या. सो सम के अंदर वी हैव 3 आर्ग्यूमेंट्स. याद रखना, सम इफ के अंदर वी हैव 3 आर्ग्यूमेंट्स. सम के अंदर वी हैव ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, दैट इज यू गिव द नंबर्स और यू गिव अ 1 रेंज, आर्ग्यूमेंट इज ओवर. सम इफ के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट लगते हैं. क्या क्या लगता है दिखाता हूं मैं आपको. जैसे ही मैं सम इफ करता हूं, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? इज आस्किंग मी रेंज. रेंज का मतलब होता है एनी रेंज, A1 to A10, B1 to B10, जो आपको रेंज देने का है, मींस ग्रुप ऑफ सेल्स. जब भी याद रखना, whenever he will ask you for the range, you cannot do something else. Even I cannot write this C2.
यू हैव टू राइट अ रेंज ऑफ सेल्स, राइट? इट्स अ सेल, तो एक रेंज देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो आप सोचोगे सर लेकिन रेंज विच रेंज डू आई गिव? वो रेंज आपको देना है जहां पर आपका क्राइटेरिया है। द नेक्स्ट वन इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब गिव द रेंज वेयर योर कंडीशन एग्जिस्ट। आपका कंडीशन क्या है? इंडिया। मेरा शर्त क्या है? इंडिया। दिस इज माय कंडीशन। ये कंडीशन जो है ना आपका इंडिया, वो कौन से रेंज में आता है आपके हिसाब से? एफ टू एफ या ई टू ई या डी टू डी, किस में आता है? विच कॉलम? F12. एफ टू एफ। तो याद रखना, आई एम जस्ट मेकिंग योर अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द रेंज। द रेंज विल बी एफ टू एफ। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम टेलिंग समीर कि इस गली में जाना है तुझे और यहां से तुझे ये उठाना है। बस इतना याद रखना। द रेंज, comma, the criteria, means this is my condition. From this range, please select all the Indians, and the third one is in box bracket, that is called the sum range. वो बोलते ठीक है भाई, इंडिया उठाऊंगा लेकिन टोटल का कॉलम किधर है तुम्हारा? किसके ऊपर टोटल मारने का है? Sales. मैं बोलूंगा इट्स बी टू बी। ये भी एक रेंज है, याद रखना। देखो क्या पूछ रहा है वो, सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज। रेंज का मतलब होता है रेंज, लेकिन वो बोलता है सम का रेंज, मतलब जहां से मैं सम किसका करूं? तो आई सेड प्लीज डू द सम ऑफ दिस रेंज। सो इट मींस इंडिया विल बी टेकन आउट, सिलेक्टेड फ्रॉम एफ, और उसके सामने जाएगा बी में, उधर से सब नंबर्स उठाएगा और आपको बताता है कि टोटल 3,22,526 सेल्स इज डन बाय इंडिया। और अगर सबको दे दूं मैं ऐसे, व्हाट इज द एंटायर सेल्स? तो द एंटायर सेल्स इज 18,93,000। उसमें से 3,22,000 जो है वो इंडिया का है, ठीक है? नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू मेक दिस मोर डायनामिक, कि सर अभी इंडिया की जगह पे मेरे को लंदन का चाहिए, तो यूके का चाहिए, तो अगेन एंड अगेन यू विल टाइप दिस, you will type here India UK. Instead of that, what we will do, I can directly type this. This will be fine. Darshan, is this okay for you, or do you want me to make you understand what I wrote this M1? Do you think that this is I should teach you what this means? अगर हाँ बोलते हो तो सिखाओ। Got it, sir. Darshan, instead of India, what I wrote C. That's great. You said Instead of M1 writing, only. Select the cell row. instead of just writing absolute text that is called India, मैंने बोला कि भाई इंडिया इंडिया छोड़, जो भी M1 में लिखा है ना उसका टोटल मारने का तुझे। मतलब याद रखना, बट M1 के अंदर यू आर सपोज टू राइट ओनली द थिंग विच इज अवेलेबल इन F to F, क्योंकि वो M1 में तुम जो भी लिखेगा, गधा घोड़ा कौवा कुत्ता, वो किधर ढूंढेगा? वो F में ही जाके ढूंढेगा। और F में क्या, उसको गधा घोड़ा मिलने वाला नहीं है। F के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ सिटीज ही मिलने वाला है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आपने उसको M1 बोला है। सो दैट आई हैव टू राइट हियर कि लोकेशंस लिखना है भाई यहाँ पे, टू मेक इट मोर डायनामिक, एंड द लोकेशंस विल बी ओवर हियर। ऐसे व्हाट इज द टोटल ऑफ इंडिया, तो मुझे इंडिया का टोटल दिखा रहा है। ऐसे व्हाट इज अबाउट यूके, तो यूके दिखा रहा है। गेटिंग इट? इज इट ओके? एनी मोर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे एक ही लोकेशन का हमने उठाया, लंदन और इंडिया इकट्ठा उठा सकते हैं? दो क्राइटेरिया दे सकते हैं एक ही सेल में? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। ये रजत जी ने बोला ना, पूछा। हाँ जी। या तो अभी देखो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अभी सवाल ये था रजत जी का कि टेक द टोटल सेल्स, ओके, टेक द टोटल सेल्स of all the employees whose sales is more than 45,000 only. Okay, प्रकाश जी पहले आप सबको क्वेश्चन में समझा लेता हूं, उसके बाद आपका आंसर देता हूं। मतलब मुझे सिर्फ 45,000 के जो ऊपर वाले जो सेल्स के बंदे हैं, जिन लोग ने 45,000 के ऊपर सेल्स किया हुआ है, टेक द टोटल ऑफ ओनली दोज नंबर्स, ओनली दोज फिगर्स विच आर मोर देन 45K। ठीक है, बट ठीक है, दिस आंसर विल बी, यू नो व्हाट, ऐसे सम इफ, याद रखना, सम इफ विल एक्सेप्ट थ्री क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड थ्री आर्गुमेंट्स। सॉरी, थ्री आर्गुमेंट। आर्गुमेंट नंबर वन विल बी रेंज। रेंज का मतलब होता है जहां पे तुम्हारा कंडीशन है वो रेंज क्या है। ऐसे में कंडीशन इज अबव 45,000 एंड दैट इज सिटिंग इन द कॉलम बी। जो मेरा शर्त है ना वो खुद ही कॉलम बी में ही है।
that is more than 45. So I say from B to B in double quotes, more than 45,000, this has to be in quotes. Okay. And the third argument is total kahan se marna hai. So total bhi idhar se marna hai. So even if you don't write this, it's an optional. तो भी उसने ये मार दिया. Now this is only and only total of all the sales which are above 45,000, right? You understood this? So this doesn't require the third argument because the first argument itself contains the numbers. Okay. Now take the total salary. Take the total sales of potato and pencil combined. Potato and pencil, ये दोनों का टोटल करके बताओ मुझे. टोटल सेल्स ऑफ पोटैटो एंड पेंसिल कितना हुआ मिला के? देखो टोटल पे ही कितना क्वेश्चन है अपने पास, अभी तक टोटल से बाहर नहीं निकले हम लोग. The more and more you people will solve, याद रखना तभी ही मास्टरी आएगा आपका. So question solving is very important, right? सर ये फाइल भी मिल सकती है हमें, क्योंकि इसी पर डायरेक्टली मैं आपको ये फाइल को अपलोड कर देता हूँ. वैसे सच्ची बोलूं मैंने क्या किया, इट्स ओनली 10 people, they are getting repeated. ये 10 लोग हैं जो मैंने रैंडम लिखे हैं. And all the random generated date, random generated sales figure, आप लोग सब, this database can be created in max to max 3 minutes. अगर आप अपनी जिंदगी का 3 मिनट दोगे तो ये डेटाबेस बन जाएगा आपका. मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे बनाते हैं अगर आपको बनाना. Okay, I hope you did this. So I got one answer from Darshan. सर सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा. आप ज्यादा आगे सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बोल दिया आप. एक्स्ट्रा सोचने से ऐसा होता है. Okay, so I'll write the answer from you. I want to take the total का, पेंसिल का और पोटैटो का, right? So I'll do one thing. ऐसे समीफ, can you take the total of pencil? तो मुझे बता पेंसिल किधर है. ऐसे it's in E to E. He's asking me what? ऐसे पेंसिल, ठीक है. And sum range is very important. You cannot write anything else. जब आप कॉमा करते हो ना दर्शन, तो you should follow the arguments. Once you do comma, he asked you for the criteria. You wrote the criteria. Again I put a comma. He is asking me for the sum range. Sum range का मतलब होता है ये वाला ही, और कुछ नहीं हो सकता है. You have to close the bracket after giving 3 arguments. उसके अलावा you cannot do anything because ये fixed formula है. So this will give me only pencil का total out. Correct? Correct? ठीक है. I will add now. I will say पेंसिल के टोटल के साथ में क्या ऐड करने का है? पोटैटो का टोटल. So again I will call Samif, bro, तू भी आजा. मुझे समीफ बोलता है what you want to do. I say I want to take the total which exists in E to E. मुझे बोलता है what? I say this time it's potato and the sum range is again B to B. So this will take the total of pencil and potato both. So दोनों का टोटल जो है वो है ये 6,96,000. ठीक है ना? ऐसे देना पड़ेगा, और कुछ इलाज नहीं है इसका. Hey, but this is also one method. So you all will understand कि how to aggregate or हाँ, someone asking me something. सर जैसे मैंने आंसर दिया आपको, तो मैंने सम से पहले भी इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, वो भी करेक्ट में होगा या उससे डिफरेंट आएगा? आपने क्या किया है, कहाँ पर है? ओके, रजत ने किया, वो खुद ही संभाल लेगा, वो खुद ही संभाल लेगा इसको. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आपने लास्ट में बंद भी कर दिया ना? हाँ जी, ठीक है. मगर बिना मतलब का ब्रैकेट मत खोलो. ओके, ठीक है. ओके, नाउ रजत जी आस्किंग मी कि ये तो आपने सर इंडिया का टोटल निकाला, अगर इनको चाहिए था कि
इंडिया के डॉक्टर लोगों का सेल्स का टोटल निकालने का है, या इंडिया के CS वालों का, या समथिंग लाइक दैट. ओके, सो नाउ योर कंडीशंस आर नॉट वन, राइट? यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन है, करेक्ट? सो इफ यू हैव मोर देन वन कंडीशन, तो न सम कर पाएगा न सम इफ कर पाएगा. सम बोलता है आई कैन टेक द टोटल विदाउट एनी कंडीशन, एंड सम इफ सेज आई कैन टेक द टोटल ओनली वन कंडीशन. सम इफ कैन टेक ओनली वन कंडीशन फ्रॉम यू. ठीक है? नाउ आई कैन राइट हियर, तीसरा भाई है उसका जिसने नया जन्म लिया, उसने अभी फिलहाल, उसका नाम है सम इफ्स. दैट्स व्हाट प्रकाश जी ने कहा, है ना? सम इफ्स. इफ्स मींस बहुत सारे इफ लग सकते हैं. सो व्हाट दिस विल डू, दिस इज वेरी सिंपल. सी हाउ इट वर्क्स. यू वांट टू टेक द टोटल ऑफ से क्या था, हाँ, इंडिया के डॉक्टर्स लोगों का सेल्स, ओनली इंडिया के डॉक्टर्स. सो हियर यू हैव टू कंडीशन, वन इज इंडिया एंड अनदर इज होस्ट इज डॉक्टर. सो आई विल टाइप हियर इक्वल्स टू सम इफ्स. देखो जैसे मैं खोलता हूं ब्रैकेट, अभी आप ही मुझे बताओ दर्शन, आई वांट यू टू टेल, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, इवन मानसा यू कैन अंडरस्टैंड एंड लेट मी नो कि एज पर दिस आर्ग्यूमेंट जो अभी खुला है ब्रैकेट, the very first argument वो मुझे बोल रहा है some range. So my question is I want to take the total of doctors from India का sales. Okay, so he's asking me some range. तो कौन सा रेंज देना चाहिए आपके हिसाब से दर्शन? We'll take it from the sales now, sir. Yes, we will take that. This is a good answer. B2B. Very nice. So you should understand he's talking about some range. मतलब जहां से वो sum मारेगा, that is B2B. Very correct. So once I say B2B, now I put a comma. अब देखो what is asking me, just see this. Criteria range. एक मिनट, ये देखते हैं आपको क्या मांग रहे हैं. एक मिनट, what is asking you, see? Criteria range. क्राइटेरिया का रेंज मांग रहा है वो. द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया, वॉट एवर इज योर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 1 बोलता है बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं. क्राइटेरिया मींस कंडीशंस, राइट? सो इज आस्किंग मी योर कंडीशंस का रेंज किधर है. सो व्हाट इज योर कंडीशन नाउ? अपना कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? Sales above. लोकेशन शुड बी इंडिया. लोकेशन इज इंडिया, बराबर ना? पहला कंडीशन इंडिया, राइट दर्शन? Yes, sir. माय फर्स्ट कंडीशन इज इंडिया एंड सेकंड कंडीशन इज डॉक्टर, करेक्ट? Okay. तो ही इज आस्किंग मी कि गिव मी द रेंज वेयर योर फर्स्ट कंडीशन इज. तो मेरा पहला कंडीशन तो लोकेशन है, इंडिया है ना, तो उसका रेंज क्या है? F2F, sir. Okay, so I wrote F2. Now I just press comma. Now he's asking me, क्या पूछ रहा है? पोस्ट Second. शुड बी डॉक्टर. No, he's asking me what? किधर गया वो? Sir, but we'll have to specify it for India now, sir. Double colons India. Yes. See this, what is asking you? वापस से देखो. सबसे पहला he asked you, see what is asked you. He is asking you, give me the sum range where I will take the total. I say take the total of only this column, right? Yes, sir. Okay. After that he's asking me, okay, I will take the total from this column. अभी मुझे पूछ रहा है वो. But now give me the criteria range. मतलब the range you have to give me where your criteria is. My criteria is sitting in column F. तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि take the total of, go to this range and select India from here. So the second argument is the criteria range and the third argument is criteria itself. मतलब इस रेंज में से इंडिया उठाने का. ठीक है? ये Yes, पूरा sir. समीफ ऐसा ही चलता रहेगा. क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, चलते रहेगा ये. You keep on giving your criteria range and criteria. So first my criteria range is F, my criteria is India. Okay, again comma, again वो पूछ रहा है, please give me your criteria range 2. Second criteria क्या है आपका? I is to I post I is to I. semicolons. Yes, so I say this is my criteria range and this is my criteria.
Getting it? Yes, sir. And I press enter. So it took the things like that. Close the bracket. You can also make this little more dynamic by so here I will type the criteria and here I will get the totals. Okay. So now I will type here equals to, तो ये काम करते हैं okay. Now see, I'm building the report, a small report. I will say equals to sum ifs. Is asking me the sum range. I say it's B to B. Now is asking me what is the criteria range 1. So I say that my criteria range 1 is F to F, comma. And asking me what is the criteria range 2. I say criteria. So the criteria क्या है इसके अंदर? I say from F to F, my criteria is sitting in K2. Understood? Okay. He's asking what is the next criteria? I say my next criteria is I to I. Okay. And where is the criteria sitting? I say sitting over here. ठीक है? ऐसे मैं अगर डाल देता हूँ, you press enter. So you get the total sales now, but the criteria डालना पड़ेगा ना अभी. So I say it's India CS. India का doctor. This time doctor from London. Is that ठीक है? Fine. Same thing I want. These are the total sales. I just want to know the total numbers. So you finished with count. You also finished with count A, right? If you have one condition, you can go with count if. And if you have multiple conditions, you can go with count ifs. Any issues here? So अगर मुझे potato count करना है, so I can always go with count if, and I say, please count if. Can you do one thing? Can you count the product that is in E and just count potato from here? And that there are total 4 transactions of potatoes. ठीक है ना? सर काउंट ए का बताना. Count A वही है. I say equals to count A, and I can select anything. I can select B to B. I can select C to C. I can select D to D. Answer मुझे वही आएगा. I got 60. Because count A will count everything. Everything it will count. Spaces से लेकर it will count your special characters. अगर कुछ आ गया, कुछ formula errors, everything वो count करेगा आपका. मगर count जो है, the same thing if I give it to count and I say B to B, it will count only the values which is 59. So total employees मेरे 59 हैं, लेकिन count A ने मुझे 60 बोला because उसने headers भी count कर लिए when I said B to B. ठीक है ना? So बस ये फर्क है इसमें. इसे count will only count the values, only values, बाकी कुछ नहीं count करता है वो. और count A will count everything. Count all भी बोल सकते हो आप उसको. Count if will count only one condition, but it will keep on counting. How many doctors are there? How many managers are there? How many people are from Bangalore? लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि how many doctors are there from Bangalore, then find out करो. चलो भेजो. How many doctors are there from Bangalore? Count the number of doctors from Bangalore. Okay, Darshan. Okay, so sorry, Darshan. Actually, मैंने उसको cover ही नहीं किया. मैं आपसे I'm asking for the answer. My question was how many doctors are there from Bangalore, right? So this we have 2 conditions here.
No, So sir. two conditions. Again, put in the message, sir. I put in the message again. Okay. Yeah, but you did sum if. I don't want to take the total, dear. है ना? I said I want to count how many doctors are there from Bangalore city. This was my question. I don't want to count the sales. मुझे sales base नहीं चाहिए. मुझे how many doctors find out करना है. So if only how many doctors, then we have count if. One condition, doctor. But doctors from Bangalore means two conditions. So count if cannot do this. So I have to ask his brother called count ifs. And now see how count ifs works. Same है. सिर्फ दो parameter will be continue flow होते रहेगा. I say count ifs. Open the bracket. See this. Range criteria चलते रहेगा. You want doctors or Bangalore जो भी है. So I say my first criteria range is this. And from here, question क्या था अपना? Bangalore. Okay. So from Bangalore. here, criteria, and I want Bangalore, and then again comma, then my next criteria is this, again comma, then here I want doctor, and so on. ठीक है दर्शन? Yeah, sir. The range and your condition. The range and the condition. The range, condition. चलते रहेगा वो. आपको बता रहा है कि बैंगलोर में एक भी डॉक्टर नहीं है. Okay. So if I give the same, the total number over here, I say equals to count ifs, bracket open. The range is F to F, and the criteria is this, comma, the range 2 is I to I, and the criteria is this. So these are the doctors from London. The total sales of doctors from London is 81,000, and there are 3 transactions of this. And if I type here India, then there are 6 doctors from India. The total sales is 13 lakhs, 3,613. आ रहा है समझ में निपुण? Yes, sir. But now there is a challenge here. You know, you'll not believe. मुझे ना ये लोग दोनों पसंद नहीं है. You know why? The drawback. See, there is always a drawback. I don't know. I find this as a drawback. Some आया, some if आया, some ifs भी आया. But again, what I want, उस some if भी नहीं कर पा रहा है. You know what? See, even the count if cannot do this. What? I will remove India from here and I will remove doctors from here. ठीक है? If I type the post manager and I press enter, I am not getting the sales over here, nor I am getting the total number of managers over here. आना चाहिए था मेरा टोटल मैनेजर्स का टोटल सेल्स आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था प्रकाश जी? आना चाहिए था कि नहीं बताइए आप? आना चाहिए था. आना चाहिए था लेकिन नहीं आया. टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स आना चाहिए था, नहीं आया. वाई नहीं आया? निपुण, मानसा, दोनों में से कोई भी आंसर करो. क्योंकि लोकेशन वाला ब्लैंक है. सिर्फ मानसा और निपुण. लोकेशन वाला ब्लैंक है. ओके, मानसा, यू अंडरस्टूड? नो. नो सर. मैं समझ जाता हूँ. वाई? बट मानसा, यू नॉट आस्किंग मी एनीथिंग. वाई बेटा? इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग देन? No sir, like my network is unstable, so I know. I can see that. थोड़ा आपका ब्रेक हो रहा था. You can switch off the video if you want, but if you can listen to me, that will be also nice. But see that you can, I should be audible to you. So see this, the formula over here. ये formula देखो यहाँ पे. This formula is taking the total
the total is sitting in B, sales. He is taking the total of anyone who is coming in K2. K2 matlab location and L2 matlab post. This is my L2, this is my K2. मैं जो भी K2 में लोकेशन डालूंगा और जो भी पोस्ट में डालूंगा, it will take the total. But the mandatory is both should be there. जब तक मैं यहां पर इंडिया नहीं लिख देता, वो मैनेजर भी नहीं आ रहा है बेचारा. We had 2 managers, correct? 2 मैनेजर था. Sir. Then why is waiting? मैनेजर तो था. तो सर इंडिया के 2 मैनेजर थे, ठीक है ना. इंडिया निकाल दिया तो सारे मैनेजर्स आने चाहिए थे. एंड इफ आई रिमूव मैनेजर्स फ्रॉम हियर, देन ही इज. समझ में आ रहा है आपको? आई So वांट it दिस टू takes बी in मोर डायनामिक. consideration of the first criteria. या आई जस्ट वांट टू बी मोर क्लेवर. उसको समझना चाहिए पागल को, लेकिन वो नहीं समझेगा क्योंकि सम इफ वर्क ऑन कंपल्सरी कंडीशंस, वेयर जितना कंडीशन तुम लगाएगा. अभी देखो मैं और कंडीशंस लगाता हूं. हाँ, आई से कॉमा, दिस टाइम माय क्राइटेरिया 3 इज H2H, और इसके अंदर माय क्राइटेरिया दैट इज डिपार्टमेंट इज ओवर हियर. देन माय फोर्थ कंडीशन इज प्रोडक्ट व्हिच इज सिटिंग इन E2E एंड द प्रोडक्ट इज ओवर हियर. मैं 4 कंडीशंस लगाता हूं. अब देखो आप, even I have typed India का total sales, he is not giving me the total sales of India. I will type here post is manager, he is not giving me the post of manager. यहाँ पे आ गया because ये बंदा वो दोनों को नहीं देख रहा है. अगर इधर भी मैं कर दूं ना, comma, the third criteria range is H2H, comma, this one, and the fourth one is E2E, this one. अभी ये भी 0 हो गया. ठीक है. So now this will only work if I type anything which matches all the 4 criteria. तो ही ये लोग जागेंगे. So I type here India, CS, sorry, हाँ, post, department is A, कहीं ना कहीं तो अभी भी नहीं आया, and the product is sugar. Now he got, there are 2 transactions of all the matching criteria. आ रहा है समझ में? आपको समझ में आ रहा है सब लोगों को? गणेश, एवरीवन, रजत. Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा सर. अरे भाई, अरे ऐसे मत बोलो. क्या समझ में नहीं आया? ये 4 कंडीशन है मेरा. 1 कंडीशन इज सिटिंग इन M2, सॉरी ये कौन सा है? K2, L2. ये K2 में लिखा हुआ है, L2, M2 एंड N2. सम इफ्स क्या करता है? दिस इज सम इफ. आई वांट टू टेक द टोटल ऑफ. ये आपको देख के डर लग रहा है क्या? ये सब देख के यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, राइट? Yes, sir. ओ माय गॉड, इसके लिए तुम लोग भी है ना मेरे को डरा देते हो ऐसे बोल के. आई विल रिमूव एवरीथिंग. चलो, डरने का नहीं. हाँ, डरने का नहीं. अब वापस से करता हूँ. देखो, ऐसा तुमको देख के डर लग रहा है, खाली है नहीं, कुछ भी नहीं है वो. सी नाउ, आई वांट टू टेक द टोटल ऑफ, ये चारों कंडीशन मैच होना चाहिए. ठीक है, ऑल द 4 कंडीशंस. ओके, आई विल राइट हियर इक्वल्स टू सम इफ, बिकॉज टोटल तो सम इफ ही मारेगा ना. सो आई विल कॉल सम इफ और सम इफ्स. किसको बुलाऊं? तीनों में से, 3 भाई में से. Sum Sum ifs. ifs, because you want to take the total on multiple criteria, तो sum ifs ही करेगा और कोई नहीं कर सकता है. अब sum ifs को बुला रहा हूं. sum ifs बोलता है ओके, गिव मी द रेंज जहां पर टोटल पड़ा हुआ है, नंबर का रेंज, वैल्यू रेंज. ऐसे वो बी में. इतना समझा मानसा? बी रेंज क्यों दिया? क्योंकि मुझे पूछ रहा है सम का रेंज किधर है. ऐसे कॉम. नाउ इज आस्किंग मी गिव मी द क्राइटेरिया रेंज. मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है? इंडिया ना. इंडिया का रेंज क्या है? F2F. तो मेरा जो पहला क्राइटेरिया है उसका रेंज F2F है, राइट? देन कॉमा. मुझे पूछता है ये जो F2F दिया, इसमें से क्या उठाऊं? व्हाट यू वांट टू टेक ऑफ दैट? ऐसे टेक दिस. या तो मैं डबल कोट्स में इंडिया लिखेगा. आई एम नॉट राइटिंग इंडिया, आई एम जस्ट गिविंग हिम द सेल कि फ्रॉम F2F यू पिक अप दिस. तो मेरा एक चीज पूरा हुआ. अगेन व्हेन आई प्रेस कॉमा, इज आस्किंग मी क्राइटेरिया 2 क्या है तुम्हारा? माय क्राइटेरिया 2 इज दिस पोस्ट, राइट?
तो मुझे बोलता है पोस्ट का रेंज क्या है, रेंज मैं बोलता हूं आई टू आई। ओके, वो पूछता है आई टू आई में से क्या उठाऊं, मैं बोलता हूं आई टू आई में से ये उठा। इतना समझा कि नहीं? बस वो आप देते जाओ। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का रेंज क्या रहेगा, एच टू एच। तो आगे मैं बोलता हूं गो टू एच टू एच, और इसमें से क्या उठा, ये उठा M2। बोलता और कोई क्राइटेरिया है, बता है ना, किधर पड़ा है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किधर है, E2E में है, E2E में से क्या उठाऊं, मैं बोला जो भी इधर लिखा रहेगा वो उठा। इट्स वेरी सिंपल। सो ऑल वी आर डूइंग इज क्राइटेरिया रेंज, ये सब चलते रहता है। अभी देख के तुम लोगों को डर लग रहा है, लेकिन जब करोगे तो इट्स वेरी सिंपल। अभी समझ में आया मानसा? अभी भी नहीं आया इसको बाबा, नहीं आया? ओ मानसा हेलो, ये तो हाँ ना भी नहीं बोल रही। अच्छा, आई थिंक इसको लेट जा रहा है, इसको आवाज लेट जा रही है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी इसको आवाज आया। एनीवेज, सो नाउ सी दिस, जैसे एंटर मारता हूं, he is giving me 28,237, and if I delete any one from this, अगर A निकाल दिया ना मैंने, he is not showing me anything, करेक्ट? जबकि उसको फिर ये दिखाना चाहिए था कि then give me the total sales of sugar by CS from India, दिखाना चाहिए था उसको, लेकिन वो डायनामिक नहीं है। Whatever condition you have mentioned, it has to be there, वो फुलफिल होएगा तो ही सम इफ्स आपका काम करेगा। I hope you understood. Rajat, you are getting me right? Yes, sir. Clearly. हाँ, अब मैं चाहता हूं तो आप सोचोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, आपको चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए कि अगर मैं यहाँ से इनको सबको डिलीट भी कर दूं और इंडिया लिखूं, तो मुझे यहाँ पे इंडिया का टोटल सेल्स आना चाहिए। इफ आई जस्ट राइट हियर शुगर, देन आई शुड गेट ऑटोमेटिकली शुगर फ्रॉम इंडिया, ये समिफ हो जाएगा। इफ आई टाइप हियर मैनेजर, आई शुड गेट शुगर मैनेजर इंडिया, सम इफ्स अपने आप हो जाएगा। इफ आई स्टार्ट रिमूविंग, देन अपने आप सम हो जाएगा, नो सम इफ्स, बिकॉज we have only one condition. So some ifs and some तीनों साथ में चलना चाहिए। If I don't have any conditions, if I have only no conditions at all, nothing if I have, then some, no conditions, some आ जाएगा आगे। The moment I type here India, it's one condition, some if call हो जाएगा, and the moment I type here more condition, some ifs call होएगा। So I want to call function, all the three functions call dynamically as per my conditions। आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, यस sir. तो बोलो, थैंक यू। यस बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे ये सम इफ, ये काउंट इफ, ये नहीं चलेगा बिकॉज वो डायनामिक्स नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए, we'll have to come with database functions। ठीक है, तो जस्ट टू मेक यू अवेयर, पब्लिक यूज भी करती है लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या फायदा क्या करता है। ये डेटाबेस फंक्शन थोड़े डायनामिक है। ओके, एंड हाउ दिस वर्क विल सी नाउ। नाउ दीज आर कॉल्ड डी फंक्शंस। याद रखना, ये लोग सब लोग कौन है? दे बिलोंग टू डी गैंग। सो अब तक आप लोग ने जितना भी फंक्शंस किया है, जितना भी, मतलब जितना भी नहीं, क्या क्या किया है? We did sum, we did average, we did minimum, we did maximum, we did count, we did count A। ठीक है ना, ये सब किया है ना? इन सब के आगे आप लगा दो डी, लगा दो डी। जैसे इनके आगे डी लगेगा, these functions will change from normal functions to database functions। Before you apply on your laptop, see my screen, and first एक ही function को अपन समझेंगे। If you समझिंग only one function, then automatically you will समझिंग all functions। हाँ, okay, so D लगाते हैं, and let's see how it works। चलो शुरू करते हैं।
कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कंट्रोल होम, ओके। हाउ दिस वर्क्स एक बार देख लेते हैं आप, एक ही बार देखो, हाँ ध्यान से देख लो हाउ दिस वर्क्स। ऐसे इक्वल्स टू डी सम डिशुम ब्रैकेट ओपन, देयर आर 3 आर्ग्यूमेंट्स ही इज आस्किंग यू, 3 आर्ग्यूमेंट्स। वो बोलता है कि आपका डेटाबेस क्या है। नाउ डेटाबेस का मतलब होता है योर एंटायर टेबल, योर एंटायर टेबल, ओके। इसके बाद मैं आपको टेबल्स भी बताऊंगा। फिलहाल वी डोंट हैव टेबल्स हियर, हम लोग टेबल्स भी करेंगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेबल। फिलहाल तो अभी अपन डेटाबेस देते हैं। डेटाबेस मतलब योर रेंज थ्रू आउट वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ऑलवेज याद रखना, आई हैव टू स्टार्ट, अभी मैं यहाँ पे ना आई कैन गिव लाइक दिस A to I, करेक्ट। मैंने बोला दिस इज माई डेटाबेस फ्रॉम A to I, okay. Now he is keeping in his mind this is the database, okay, comma. Now he is asking me another question, is field name. You know what is field means? Field का मतलब होता है your names, जो आपके columns है ना वो नहीं है, जो आपके नाम है, because ये database will always check fields मतलब आपके columns and rows means records. So whenever he asks you for the field का नाम पूछ रहा है वो आपसे, not column. Field मतलब date, sales, name, surname, product, location, ID, department, post. These are all your field names. तो वो मुझे पूछता है कि on which field you want me to take the total. कौन सा field है बोलो? आखिर में याद रखना, ये फंक्शन का नाम क्या है? dsum dsum belongs to which family? database Sum family. वो लेकिन वो किस परिवार से बिलोंग करता है? टोटल मारने का परिवार. Sum. He also belongs to the same family where Bap Dadas have been doing only taking totals, right? But he is the youngest child, which comes with the more power. जैसे कृष्ण में था, I can do something more than my elder brother. Some ifs. Some if बोलता है I have more power than some if, and some if has more power than some. So some, तो dsum बोलता है कि I can take only the totals. I cannot do anything else. I will take the total. So the total can be on which field? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा you cannot type here B2B, ऐसा नहीं कर सकते हो आप. याद रखना, you have to write the name of the field here. इतना समझ में आया? सर Yes, मतलब sir. डायनामिकली सेल के थ्रू नहीं कर सकते हम. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ओके. वो भी कर सकते हो, वो भी करेंगे आप. मैंने बोला मुझे सेल्स के ऊपर चाहिए. अभी मेरा ये फिक्स्ड है ना, मेरा टोटल तो फिक्स्ड है. आपका टोटल थोड़ी हिलने वाला यहाँ से वहां से वहां. तो सेल्स को ही मुझे देना पड़ेगा, या फिर मैं कोई नंबर ये दे दूं सेल, तो फिर उसमें जाके फिर लिखना पड़ेगा सेल्स आपको. नाउ कॉमा इज आस्किंग मी क्राइटेरिया. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. याद रखना, छोटा सा फंक्शन है, एक बार खाली खोपड़ी में बैठ गया फिर टेंशन नहीं है आपको. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. क्राइटेरिया मीन्स व्हाट? क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन. वो बोलता है आपको दिस इज योर डेटाबेस. ओके, आई अंडरस्टूड. Sir, your voice is too low, sir. Sorry, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. yes sir Okay, okay. Yes, sir. Yeah, and visible also. The screen is also visible, Yes, very sir. clear. yes sir Okay, okay. So dsum को I have given the first argument, that is my database. ठीक है, इसने बोला okay sir. From this database, I have given him the one field जिसके ऊपर वो total मारेगा. Now the third and the final thing is, को बोलते ठीक है सर, मैं टोटल तो सेल्स पे मारूंगा, लेकिन किसका मारूं? Give me the condition. Now what is the condition he is giving me? These conditions cannot be like this. क्यों? ये मैनेजर कहाँ ढूंढेगा फिर वो? How he will know what is manager? He will never do that. So these conditions can be given in the form of cells. It can be 2 cells. वो भी vertical, ऊपर नीचे होना चाहिए. These 2 cells cannot be horizontal. ऐसे नहीं हो सकता है. Say for example, I can give any 2 cells. I'll give this ये और ये. So I'm giving K10 and K11. Example दे रहा हूं मैं भी आपको. I am asking him कि criteria is sitting in this 2 cells. वो मुझे पूछता है कि सेल्स कॉलम के ऊपर I will take the total
बट किसका टोटल लूं, तो मैंने बोला वो किसका लेने का है ना, वो यहाँ पे लिखा रहेगा, जाके देख लेना. एंड आई विल क्लोज दिस ब्रैकेट. नाउ यू विल आस्क मी, सर व्हाई डिड यू टेक टू सेल्स वन बिलो द अदर? बिकॉज द ऊपर वाले सेल में I will write the name of the field, which will be dynamic. I can write location, I can write product, I can write surname, I can write anything. समझ में आ रहा है आपको? ऊपर वाले सेल में I will be using for my field का नाम. For example, अगर मैंने लिख दिया ऊपर वाले सेल में पोस्ट, तो नीचे वाले सेल में मैं लिख सकता हूँ डॉक्टर या लॉयर या अकाउंटेंट या CS. Then it will take from sales का कॉलम में ये जो आपने लिखा है ना पोस्ट डॉक्टर, तो डॉक्टर लोग का टोटल उठाएगा. Just see this. Press enter. You can see this total now. He is giving you the total of 18 lakhs. मतलब everything total आ गया. Now I will start here giving. I say post enter manager. अब जैसे मैं enter मारूंगा ये sum if हो जाएगा. देखो आप. Now this is the total of managers. आ रहा है समझ में कितना डायनामिक है? अब आप बोलोगे नहीं सर इंडिया का चाहिए, इंडिया का. अब इंडिया का चाहिए ना, तो इधर इंडिया लिखो, लेकिन वो 0 हो गया क्योंकि वो पोस्ट में ढूंढ रहा है. तो आपको इधर जाके चेंज करना पड़ेगा लोकेशन. नाउ दिस बिकम्स द टोटल ऑफ लोकेशन इन इंडिया. सो योर टाइटल चेंजेस, योर क्राइटेरिया चेंजेस एंड द फिगर्स विल ऑटोमेटिक चेंज. तो आपको whenever you write this function, you have to remember the most important thing is, you know what, when how you should give the database. ये database दोगे कैसे आप? अब यहाँ तो मैंने A to I दिया, बट ऐसे कभी नहीं देने का. पूछो क्यों, बताता हूँ. सपोज योर डेटाबेस अगर जो ये ऐसा है, ये डेटाबेस इफ आई इसको नीचे ले लूं तो क्या होगा? 44 पे आ गया. ठीक है, चलो 44 पे आ गया, नहीं सेकंड पे आ गया. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस. ये दिख रहा है आपको? रेंज के बाद चाहिए. बताओ क्या लफड़ा हो गया? Why is showing me this error? Why this कोलावरी? रो चेंज हो गई. हाँ, उससे क्या होता है? मैंने तो A to I दिया ना बाबा, मैंने तो A field. to I दे दिया है उसको. मेरा डेटाबेस A to I में ही है. सर हेडर चेंज हो गया, फील्ड नेम. थोड़ा थोड़ा राइट है. सर रो चेंज हुआ है ना. नहीं, अभी देखो ये कैसे टोटल मारता है. ये क्या कर रहा है मालूम है? आपने क्या बोला? सेल्स फील्ड में. आपको पता है उसको सेल्स मिल ही नहीं रहा है बेचारे. पहली बात तो उसको यही नहीं मिल रहा है, सेल्स फील्ड ही नहीं मिल रहा है. बिकॉज तो फर्स्ट रो. इट विल, या ये सेल्स बेचारा किधर ढूंढ रहा है मालूम है? रो नंबर 1 में. सर क्यों ऐसा? आपने बोला A to I. If you are not mentioning the row number, then automatically it will go and check in your row number 1 only. और ये सेल्स बेचारा उस उधर ढूंढ रहा है. आपको चेक करना है ना, चेक करिए. अभी देखो आप चेक करते हैं ना. अभी रो नंबर 1 में आई एम राइटिंग द सेल्स ओवर हियर. Now he got that, but the answer is 0. Why? Because he is not getting now लोकेशन. ये वाला, ये है ना. आपने बोला K10 लोकेशन. लोकेशन कहाँ ढूंढेगा वो लोकेशन कहाँ ढूंढ रहा है? F1 में ढूंढेगा. रो नंबर 1. याद रखना, जो फील्ड का नाम तुम लोग लिखते हो ना, लोकेशन ने, डिपार्टमेंट ने, पोस्ट, he will always search in row number 1 because आपने यहाँ पे A to I बोला, you haven't mentioned the row, तो by default he will go and check everything in row number 1 only. अगर मैंने अब यहाँ पे लोकेशन लिख दिया तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा. इसका तो माइक्रोफोन चालू है. यहाँ पे टोटल आ गया. आ रहा समझ में? सर रेंज A2 से स्टार्ट कर सकते हैं. सॉरी, या रेंज है ना वो A2 से स्टार्ट के A2 से I तक. आपको ऐसे फिर लिखा रेंज और बाद में A2 से फिर शुरू sales करना और पड़ेगा. change. वही मैं बोल रहा हूँ. You have to start your range from A2. A2 ना ऐसा. ठीक है, सर ऐसे में सिलेक्शन भी कर सकते हैं ना, सेलेक्ट करके. बिल्कुल. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो ये उपाय है कि आप यहाँ से भैया शुरू करिए.
ठीक है, कर दिया। अब कोई टेंशन नहीं है, अब उसको सेल्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपका, इवन दो ये नहीं है तो भी आपका टोटल आ रहा है। ओके, अब सबसे बड़ा फायदा यही है। अब यहाँ पे आई विल डू द सेम थिंग ओवर हियर, आई विल टेक द टोटल हियर, सो आई से इक्वल्स टू डी सम को बुलाता हूं मैं। अभी देखो वापस से चेक करना, मैं आई एम राइटिंग इट अगेन, आई एम कॉलिंग डी सम, माय डेटाबेस इज सिटिंग इन A2 से लेकर, एक ही बार देना पड़ेगा, इसका भी हेल्प दिखाता हूं मैं, हाउ टू राइट दिस, A2 टू I61, ठीक है, दिस इज माय डेटाबेस। ओके, मुझे पूछता है व्हाट इज द फील्ड, ऐसे फ्रॉम दिस डेटाबेस ऑन द टॉप रो माय फील्ड का जो नाम है, एक मिनट, दैट इज सेल्स, ठीक है, तो टेक द टोटल ऑफ सेल्स, मुझे बताओ ओके फाइन, व्हाट इज द क्राइटेरिया, आई से दिस टाइम माय क्राइटेरिया is not these two cells, but it's all my 4 cells. आ रहा है समझ में आपको? Now this is called multiple criterias. That's all. That's all, my lord. My honor. Just press enter and see what happens now. See this figure and this figure matches. Okay? जैसे ही मैं इंडिया निकालता हूं, उसने सम को बुलाया, अभी दिस सम आ गया सम, पूरा टोटल मार दिया। अभी इंडिया को जैसे बुलाता हूं तो आई एम वन कंडीशन, तो सम इफ आ गया एंड दिस इज द टोटल ऑफ इंडिया। ओके, आई एम टाइपिंग हियर मैनेजर, अब सम इफ आ जाएगा एंड दिस आर द टोटल सेल्स ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम इंडिया। ओह दैट्स ग्रेट। इफ आई टाइप हियर डिपार्टमेंट बी देन 0A, okay, so this is the total sales of manager from department A. आ रहा है समझ में? यस सर। सर एक चीज, वो I61 लिखा था ना, वो वाला एक बार दोबारा बता दो। ये ना, ये तो डेटाबेस है मेरा पूरा डेटाबेस कहाँ पे बैठा हुआ है? मेरा आपका है ना, माइक्रोफोन चालू हो जाता है बेटा बीच बीच में। हाँ रजत, यू गॉट दिस? सर I61 क्यों लिखा है, मतलब? क्योंकि I इज माई लास्ट कॉलम और 61 जो है वो मेरा लास्ट रो है। ओके, मतलब सिर्फ रेंज उठानी है हमने, पूरा कॉलम्स नहीं उठाने। कॉलम्स अगर पूरा उठाएगा तो यू हैव टू टेक केयर कि आपका जो फील्ड नेम है दैट शुड सिट इन द फर्स्ट रो, देन ओके, फिर आपका पहले रो में होना चाहिए, वो बीच में अगर होएगा तो नहीं होगा। एंड व्हाट इफ जैसे अब हमारा डेटाबेस नीचे नीचे और ऐड हो रहा है तो नहीं होगा। तो हम अगर जैसे I61 है तो और नीचे ले जाएं, उसको I100 करते हैं। हाँ तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप आई वेरी गुड, 61 की जगह पे आप I500 कर दो। मगर ये ऐसा नहीं करने का मैं आपको उसका दूसरा मेथड बताता हूँ। ये ऐसे आप कब तक 500 करेगा? व्हाई शुड यू डू दैट? ओके, ये सीखने के लिए थोड़ी आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है। ओके, तो अब ये मैंने लिख दिया एंड इसका फायदा यही है कि नाउ इफ आई रिमूव मैनेजर्स, सो डायनामिकली वो क्या करेगा, इंडिया एंड ए डिपार्टमेंट का उठा रहा है। इफ यू रिमूव इंडिया, नाउ दिस इज द टोटल ओनली ऑफ ए डिपार्टमेंट, है ना? तो अगेन आई विल कॉल द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, या जो भी आप बोलो, तो आई से इक्वल्स टू डी काउंट ए। ठीक है, आई वांट टू काउंट, ओके आई जस्ट डू वन थिंग, डी काउंट कर देता हूं बिकॉज आई वांट टू काउंट द सेल्स, है ना? सो डेटाबेस क्या है तुम्हारा? आई से डेटाबेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम A2 to I61. Okay, what is the field? I say to take the counting of sales. Take, okay, the conditions, I say condition is sitting in from here to here, close the bracket. ठीक है, I press enter. So we have 19 transactions from department A. Okay,
I just want to see the minimum sales and the maximum sales. Okay. So we'll type here equals to dmin database. It's A2 to I61 sales, and it's K1 to N2. Okay, I can lock this so that मुझे बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा. So I will lock this again. I will also lock this time. Okay. इसका फायदा ये है अभी कि now I can just copy and ये लोग दोनों जगह पे मैं paste कर दूंगा, so that I just need to change the function now. Instead of dmin, I will call dmax, and instead of average sales, I will call d average. See, ये आपका रिपोर्ट बन गया. अब यहाँ पे आप जैसे जैसे टाइप करते जाओगे, ऐसे गिव मी द टोटल रिपोर्ट ऑफ शुगर प्लीज, तो वो मुझे पूछता है कि वो बोलता है द टोटल सेल्स ऑफ शुगर इज 45 lakhs, the transactions are 70, the minimum sales of sugar is 11,000, maximum is 44, and the average sales of sugar is 26,000. So sugar from India. So again, the value changes over here and your report is getting changed. समझ में आ रहा है how dynamically these functions are working? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the question was, as again and again you'll have to write the range. आपको ये range लिखना पड़ता है, फिर आपको criteria का range लिखना पड़ता है, right? ये सब करना पड़ता है. The same thing we can do. I'll give you one more option here. You will enjoy now. Now let's go for naming range, right? How beautiful the formula will look. अभी तो अपना complex formula चालू नहीं हुआ है. Now to make the formula look more beautiful and understand, do you know what is naming ranges? प्रकाश जी? Yes, sir. वेरी शाबाश, चलो अच्छा है. इसका मतलब होता है कि आप कोई भी सेल्स को अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, है ना? सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेम्बर. सोचो ना, अगर आप लोगों का सबका नाम आपका मोबाइल नंबर होता तो मोबाइल नंबर सबका अलग है, तो कितना डिफिकल्ट होता पब्लिक को याद रखने के लिए कि मानसा को सब लोग मोबाइल नंबर से बुला रहे हैं. So even your close friends will can't call you up because how many numbers you will remember? Same thing. यहाँ पे A1, B2, B1, C2, there are so many cells. How you will remember कि क्या किधर है वो? So the best method, Jairaj, the best method is to call the cells by your own name. कितना मजा आता अगर आप ये जो आपका जो cells है ये किधर भी रहने दो, okay, Rajat. But you start calling from here to your this column, you start calling this column as location. आप उसको location बुलाओ ना. आप क्यों उसको F2 to F60 बुलाते हो? आ रहा है समझ में? मैं बबलू बुलाऊंगा, हाँ, मैं कुछ भी बुलाऊंगा उसको, मेरा मर्जी है. So I can call बबलू, so बबलू आ जाएगा, बबलू हाजिर हो. So how do you do that? पहले मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ. Any cells you go, you can see the name here. You can see the names over here. तो I never say that यहाँ पे आके कुछ करो, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप करते हो तो भी वो हो जाता है, मगर sometimes it becomes little dangerous क्योंकि लोग है ना यहाँ से सेल्स में जाते हैं. I want to go to Z10, so it is taking me there. Z10 में आ गया, right? So, but suppose if you type something over here, that name will get changed and थोड़ा problem आ सकता है आगे, because Excel automatically assigns names
ऑटोमेटिकली वंस यू कन्वर्ट योर डेटाबेस इनटू अ टेबल, तो वो नेम्स भी अपने आप वो अरेंज कर देता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि दिस इज B2, करेक्ट, दिस इज B3, दिस इज B4, दिस इज B5। ये लोग सब लोग अपना अपना नाम से जाने जाते हैं। बट व्हाट अबाउट इफ आई सिलेक्ट ऑल दिस, मैं बोलता हूं इसका नाम क्या, गो एंड चेक इन द नेम बॉक्स, कैन यू सी एनीथिंग? नो। नो, नो, बोलते इन लोग का नाम नहीं है। तो मैं बोलूंगा आज के बाद ये लोग सब लोगों का नाम है सेल्स। ओके, सो आई विल कीप द नेम्स, आई विल गो one method, I can go to here, I can go and I can type here sales. This is one method. अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा इसका नामकरण हो जाएगा। ओके, नेमिंग सेरेमनी इनका ग्रुप का हो गया। प्रेस एंटर एंड आज के बाद दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड बाय द नेम सेल्स। मतलब सर, मतलब ये कि आज के बाद मैं जैसा ही किधर भी लिखता हूं ना SA, आप देखना क्या होता है, दिख रहा है आपको? यू कैन कॉल, मतलब ये है कि अगर मैं किधर से भी बोलूंगा ना कि आई वांट टू टेक द टोटल ऑफ सेल्स विदाउट रेफरिंग द एक्चुअल रेंज, तो भी वो ले लेगा, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है B2 to B61। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इफ आई एम एनीवेयर इन अ न्यू शीट ऑल्सो, आई डोंट नीड टू रिमेम्बर मेरा सेल्स कौन से शीट में था बाबा, वो किधर, कुछ नहीं याद रखने का, सीधा बोल देने का कैन यू गेट मी द मिनिमम ऑफ सेल्स प्लीज। वो उधर जाके घुस के लेके आएगा, द मिनिमम ऑफ सेल्स इज दिस एंड द मैक्सिमम ऑफ माई सेल्स इज दिस। सोचो ना क्या मस्त आइटम है यार। दिल बागबान हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, दिल गार्डन हो गया कि नहीं? जो लोग यूज, अरे ये बहुत कमाल चीज है छोटा सा चीज, बट कितना जल्दी सॉल्व कर देता है अपना आंसर। नहीं तो क्या होता था, अगेन वील हैव टू स्विच ऑन टू दैट शीट एंड हैव टू रेफर दैट। ओके, बट आई हैव टू नेम ऑल माय सेल्स। तो एक तरीका ये था। सो ऐसा करते करते तुम लोग ये कर सकते हो, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द सेल्स, अगेन आई हैव टू सिलेक्ट द नेम्स, अगेन सरनेम, ये सब सिलेक्ट करते करते करो। दिस इज वन मोर ऑप्शन, बट ऐसे मत करो। कैसे करते हैं? सेकेंड नंबर मेथड, हाउ आई विल सिलेक्ट फ्रॉम योर माय डेटाबेस, फ्रॉम हियर टू हियर। सिलेक्ट हो गया सिलेक्ट। आई विल गो टू फॉर्मूला, ऊपर कैन यू सी द फॉर्मूला? इन द फॉर्मूला अगर आप देखोगे नेम मैनेजर में जाएगा ना, जैसे तुम नेम मैनेजर में, सो नेम मैनेजर विल शो यू जितने भी अभी तक नेम्स क्रिएट हुए हैं। तो वो मुझे पूछता है इतने सारे नेम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड मैंने बनाए हुए हैं। यू गेटिंग मी? ये ऑलरेडी नेम बनाया, और हम लोग ने अभी अभी एक नेम बनाया था कॉल्ड सेल्स। कैन यू सी दिस सेल्स? राइट, जैसे सेल्स पे क्लिक करता हूं मुझे बोलता है सेल्स, इट्स एम्प शीट का B2 to B61। सो व्हेनेवर यू टाइप सेल्स फ्रॉम एनी शीट, ही इज एक्चुअली लुकिंग हियर कि इट इज एम्प नंबर शीट। वो अंदर से तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला लिख देता है, बिकॉज उसने याद रखा हुआ है कि सेल्स को बुलाऊंगा तो मेरे को ये फॉर्मूला लिखने का है। ही विल राइट द फॉर्मूला फॉर यू। ये सब मैंने बना के रखा हुआ है। राइट नाउ अभी क्या करना चाहिए, या तो मैं भी क्या करूंगा, आई गो टू न्यू। ओके, यहीं से बनाऊंगा न्यू। मुझे पूछता है रिफर्स टू व्हाट, सो आई विल जस्ट अगेन टाइप इक्वल्स टू एम्प के अंदर जाना, फ्रॉम C1 to C10, ये भी कर सकता हूं मैं, बट इट्स लेंदी मेथड। The best method is, you know what? See, you want to give the names as per your titles. सीधा यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे ऑप्शन है। So Control Shift and F3, अगर मैं यहाँ से Control Shift और F3 दबा दूं, within 1 second he will create जितना भी your columns हैं, और जो भी कॉलम के जो नाम एक्चुअल नाम्स हैं, that names will be assigned as your range name. Control Shift and F3। जैसे मैं डालता हूं मुझे वो पूछता है क्रिएट नेम्स फ्रॉम वेयर, ऐसे क्रिएट नेम्स फ्रॉम द टॉप रो ऑफ माय सिलेक्शन एंड जस्ट प्रेस ओके। मुझे पूछता है कि ऑलरेडी था ना, ऐसे यस, रिप्लेस कर दो उसको।
अब एग्जैक्टली आपके सारे नाम, नेम, सरनेम, प्रोडक्ट, लोकेशन, आईडी, ये सब बन गया है. जस्ट गो एंड चेक हियर. यू कैन सी दिस. डेट, इट्स डिपार्टमेंट, इट्स आईडी, इट्स लोकेशन, इट्स नेम, ये सब आ गया ना. नाउ द फॉर्मूला बिकम्स सो इंटरेस्टिंग. अब यही फॉर्मूला आई एम पुटिंग इट ओवर हियर. मैं बोलता हूं dsum, मुझे बोलता है व्हाट, वेयर इज योर डेटाबेस. अरे काम करो ना, डेटाबेस का भी तो नाम नहीं दिया आपने. दिया, इंडिविजुअल सबका नाम है, डेटाबेस का भी एक नाम दे देते ना. तो माय डेटाबेस स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर. सी, उसका नाम नहीं है अभी ऊपर, जस्ट सी द नेम बॉक्स. ओके, आई जस्ट डू वन थिंग. मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं एंड आई विल सिलेक्ट ओनली द प्रोडक्ट कॉलम एंड जस्ट चेक द नेम बॉक्स. अरे नेम बॉक्स में प्रोडक्ट आया नहीं. यहाँ पे आया क्या प्रोडक्ट? या आई हैव प्रोडक्ट हियर. ओके, इट्स सिलेक्टिंग. लेट मी गो फॉर लोकेशन. ओके, सी इट्स वर्किंग फाइन. आ रहा समझ में? सर वो सिर्फ वैल्यूज ही उठा रहा है, ऊपर हेडर नहीं उठा रहा. अरे उठा रहे बाबा, सब उठा रहे. हाँ तो वैल्यूज ही उठाएगा ना. ये कॉलम में यहाँ से यहाँ दिया हुआ है. पहले हमने लोकेशन से पूरा सिलेक्ट किया था ना, इसलिए शो नहीं हो हाँ रहा. तो लोकेशन तो मेरा हेडर हो गया ना, नाम हो गया. वो तो हेडर बन गया आपका. वो मुझे चाहिए भी नहीं. मुझे व्हाई आई वांट दैट. whenever I call this, I don't want this product to be included, right? नहीं तो वो भी काउंटिंग में आ जाएगा ना फिर तो. But now I will check it over here कि in dsum I wanted this, right? नाम आना चाहिए. dsum में चलता है कि नहीं देखते हैं. dsum मेरा नाम उठाता है कि नहीं उठाता है. Okay, because dsum को हेडर चाहिए होता है. dsum needs header. मैंने अब तक dsum के साथ में करके नहीं देखा है names. Let me check. Okay, I'll say dsum. मुझे बोलते हैं डेटाबेस क्या है तेरा. So I'll do one thing. I will select my all the columns here, and I will give the name over here. It's my data. ठीक है? या all data. It's all data. And press enter. ये पूरा डेटा हो गया मेरा. Right? Okay. Now asking me, I say equals to dsum. डेटाबेस क्या है तुम्हारा? I say it's all data. Okay. Comma. जैसे ऑल डेटा किया उसे सिलेक्ट कर लिया. मुझे बोलते हैं व्हाट इज योर फील्ड. ओके, नाउ द गड़बड़ होगा अपना. माय फील्ड इज नॉट अ रेंज नाउ. आई से सेल्स. लेट मी चेक बिकॉज इट हैज टू बी इन कोट्स, राइट? एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया. तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है? इसका भी नाम होना चाहिए था बट उसने ऑटोमेटिकली दे दिया. I'll just type here criteria. You can just see this. ये dsum ने ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया दे दिया. क्राइटेरिया का मतलब होता है from K2 to N2. Let me check. Yeah, it's reference. dsum का ये एरर होगा. मुझे लगा ही था dsum का ये एरर होगा. इसके लिए हम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा. Because dsum needs this sales as a name over here. अच्छा, क्राइटेरिया की जगह पे लेट मी टाइप दिस एज फ्रॉम ईयर, यही था ना, टू ईयर. इट्स K1 to N2. ओके, चलो आ गया. वेरी गुड. ले लिया ना उसने. क्योंकि एक बार मुझे ना इसने एरर दिया था तो मुझे डाउट था ये वापस से उसको. व्हाई आई वाज इन डाउट, यू नो, बिकॉज ऑफ दिस सेल्स. बिकॉज वी हैव द सेम नेम. ये जो सेल्स है ना, ये पूरा सेल्स का नाम ही ये है. तो आई थॉट कि इसने क्या मालूम इसको हेडर तो नहीं लिया, लेकिन उसने ले लिया. अच्छा किया. सी माय फॉर्मूला इज बिकम सो नाइस. अब मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं. मैं इसका सबका नाम रख दूं क्या? देखते हैं इनका नाम रख के. लेट मी गिव मी दिस एज कंडीशंस. आई डोंट नो ये चलेगा, देखते हैं. एंड ही इज आस्किंग मी क्राइटेरिया. आई से इट्स कंडीशन. दैट्स फाइन. See, so your formula becomes this: all data sales condition. Got it? And even if you now copy this anywhere, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेंज तो है नहीं कि यहाँ पे आपका all data is going to change. All data means the same selection. It will not change that. Only you need to do is this time it's the count. That's all. This time
It's dmin समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. See, your formula becomes so sweet. और सर इसका डी फंक्शंस गूगल शीट्स में भी वर्क करते हैं? किसमें? गूगल शीट्स? नो, आप ट्राई करो, गूगल शीट में मैंने ट्राई नहीं किया डी फंक्शंस। ओके, नहीं होगा, मुश्किल है। करूंगा, कल ट्राई करूंगा। यहाँ ट्राई करो, मैंने ट्राई नहीं किया डी सम्स गूगल शीट में। मैं ज्यादा इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे गूगल शीट्स पे काम करने का। सर ये किसी भी वर्जन में चल जाएगा या फिर अपडेटेड में चलेगा? किसी भी वर्जन में आप जाओ, आप क्या बोलते हैं, अकबर बादशाह के जमाने का भी एक्सेल लाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज उसमें ये नेम बॉक्स होता ही है, इट विल वर्क देयर। मगर डी सम आई डोंट नो, डी सम्स ओल्डर वर्जन में है कि चेक करना पड़ेगा आपको। 7 में है ये देखिए। 2010 में होगा कि नहीं आई डोंट नो, बिकॉज आज ही मैं एक बैच ले रहा था, दे वर हैविंग 2010 वर्जन्स, इट वाज क्वाइट ओल्ड। सो एनीवे, ये देखा आप लोग ने इसका फायदा क्या क्या हो सकता है। सो अभी ये तो ठीक है, आप लोग ने अभी डी फंक्शंस किया, वंस वी डू वी लुकअप्स, वंस वी डू लुकअप्स एंड ऑल दैट स्टफ, तभी आपको इसका वैल्यू मालूम पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी यूजिंग लॉट एंड लॉट ऑफ रेफरेंसेस इनसाइड व्हिच विल मेक यू दिमाग घुमाविंग। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने जब रेफरेंसेस देखा, हाँ, तो आप लोग का ऐसे दिमाग चला नहीं। सम इफ, अब यही चीज सम इफ को देखो मैं कैसे करता हूँ। सम इफ, सी, मुझे बोलता है व्हाट इज योर सम रेंज, नाउ सी दिस सम रेंज इज, खत्म हो गया। मुझे पूछता है व्हाट इज योर क्राइटेरिया रेंज, ऐसे क्राइटेरिया रेंज इज माय लोकेशन, सी हाउ इट इज ब्यूटीफुली इज डूइंग। मुझे बोलता है क्राइटेरिया रेंज जो है लोकेशन, उसका क्राइटेरिया क्या है, ऐसे दिस इज माय क्राइटेरिया। मुझे बोलता है ओके व्हाट इज योर क्राइटेरिया रेंज, दूसरा क्या है, ऐसे दूसरा क्राइटेरिया रेंज इज माय पोस्ट, और आई कैन जस्ट सिलेक्ट। वो भी अभी आपने जो बोला ना रजत जी ने, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, सेल्स, ओके, ही इज आस्किंग मी क्राइटेरिया रेंज 1, ऐसे दिस इज माय रेंज 1, एंड मुझे बोलता है क्राइटेरिया क्या है, ऐसे दिस इज माय क्राइटेरिया। व्हाट इज योर रेंज 2, ऐसे दिस इज माय रेंज 2। व्हाट इज क्राइटेरिया, ऐसे दिस इज माय क्राइटेरिया। अभी ये क्यों ऐसा हो रहा है? सर ये कौन सा एक्सेल है जिस पे आप सिखा रहे हो अभी? ये क्या है, ये कौन सा लोकेशन था ना, ये पोस्ट है, ये लोकेशन मैंने सीम पर बराबर लिखा है क्या इसका? It has to be exactly same, huh? Sales K1 criteria range 1. चलो लेट मी चेक, ये सब है ना, अभी मैं सब ट्राई कर रहा हूँ। क्राइटेरिया रेंज 1 इज माय लोकेशन, ठीक है, एंड द क्राइटेरिया इज दिस। लेट मी चेक ओनली वंस एंड चेक दिस। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। तो अगर मैंने इसको लोकेशन के अंदर इंडिया दिया, फाइन, इट इज टेकिंग मी, इसका मतलब होता है कि ये नाम उठा रहा है। ओके, एंड क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 इज, अच्छा, लोकेशन की जगह पे आई विल राइट K1. या इट्स K1, ही इज गिविंग मी एरर। लेट मी चेक, लोकेशन अलग अलग है इसके लिए कुछ, आई जस्ट कॉपी दिस लोकेशन, आई विल पेस्ट द लोकेशन ओवर हियर। चलो और एक काम करते हैं, ऐसा करेंगे तो आएगा कि नहीं देखता हूं मैं। अभी आया। सो ये सब है ना टेढ़ा मेढ़ा चीजें हैं। ओके, सो दिस ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। सर इसका रीजन ये तो नहीं, अब हमने रेंज को नाम दे दिया, वो सिर्फ ऊपर हेडर ही उठा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये समीफ को तो मालूम नहीं है ना। समीफ क्या बोल रहा है कि आप मुझे रेंज दो, रेंज, ठीक है, क्राइटेरिया का रेंज दो, बराबर बोल रहे हो आप, क्राइटेरिया का रेंज दो। तो मैंने उसको बोला जो मेरे नाम था, माय नेम, रेंज का जो नाम है वो लोकेशन है। अगर मैं इसको लोकेशन दे रहा हूं, ये लोकेशन, दिस इज द नेम, तो वो बराबर जाके दिस
he assumes that this is the name, but when I give this, right, तो वो वैल्यू इसके लिए बोल रहा है क्योंकि वो एक्चुअली अभी इसको लोकेशन पढ़ रहा है। आप समझो मेरी बात। सर अगर इसको इज इक्वल टू लोकेशन हम रेंज का नाम दे रहे हैं तो चलेगा? देखना, मतलब इज इक्वल टू लोकेशन किसको बोलेंगे? K1 में इज इक्वल टू लोकेशन कर दें तो इक्वल्स टू, हाँ जी, तो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा ये। एक बार करके देखो ना विदाउट डबल कोट्स। नहीं तो एरर आएगा ना, मतलब तो एरर आएगा, इधर ही एरर आ जाएगा ये, ओके क्योंकि यू कैन नॉट राइट दिस इक्वल टू, या तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, इट्स सेम, इक्वल टू लोकेशन और लोकेशन इज सेम। ओके Okay, now here comes into picture indirect function. समझे आप indirect क्या होता है? नहीं सर समझाइए। चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको इनडायरेक्ट आगे जाके भी सीखेंगे। इनडायरेक्ट बोलता है कि नाउ सी दिस, जब मैंने इसको K1 बोला, बिकॉज वो मुझे पूछता है कि क्राइटेरिया का रेंज क्या है तुम्हारा, समिट्स को बोल रहा हूं, तो दैट इज माय, ये मेरा क्राइटेरिया का रेंज है F2 से F60, राइट, क्योंकि उसके अंदर इंडिया उसको टोटल मारना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग F2 टू F60, आई कैन राइट हियर द नेम ऑफ द, क्योंकि अभी देखो जैसे LOC टाइप किया तो ही इज गिविंग मी द नेम्स, तो मैंने टैब मारा, सो नाउ समिट्स को बराबर पता है कि दिस नेम बिलोंग्स टू द रेंज व्हाट यू आर आस्किंग मी, तो वो बराबर ले लेता है। लेकिन अगर ये चीज जब मैंने उसको बोला कि लोकेशन, तो व्हेन आई एम टाइपिंग दिस एज K1, तो वो पता है क्या देख, वो क्या देख रहा है K1 में, लोकेशन देख रहा है, नो डाउट K1 में लोकेशन लिखा हुआ है, मगर उसको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये जो लोकेशन है वो एक्चुअली रेंज है। सो ही इज नॉट ट्रीटिंग दिस लोकेशन एज द रेंज फ्रॉम F2 टू F100। आपको समझ में आ रहा है? वो डायरेक्ट जा रहा है, उसको लगता है कि जैसे ले रहे हैं ना सर। उसको लग रहा है, हाँ, उसको टेक्स्ट ले रहा है, वो बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1, हाउ कैन इट बी लोकेशन, तो उसको ये बोलना पड़ेगा भाई तू उसको लोकेशन मत पढ़, लोकेशन के अंदर घुस के देख, देयर इज अ नेम कॉल्ड लोकेशन जिसका रेंज लिखा हुआ है। तो इनडायरेक्ट फंक्शन जो है वो क्या करता है, ये करता है। अभी आपको यहां से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या करता है। अभी देखो यहाँ पे देखो, वाया वाया, इसको कहते हैं वाया वाया। आई विल राइट हियर C3, क्या लिखा है मैंने, एक सेल का नाम है C3, इक्वल टू नहीं लिखा है, इट्स ए टेक्स्ट, एंड इनडायरेक्ट फंक्शन हमेशा टेक्स्ट लेता है। तो मैंने बोला C3 में क्या लिखा है, देखो आप, शिवांगी लिखा है ना, बरोबर है। और अगर मैंने इस सेल को बोल दिया कि यू आर इक्वल टू क्या, इनडायरेक्ट, तो ये है, व्हाट विल आई गेट, आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको बोलता हूँ यू आर इक्वल टू M8, तो मुझे बोलता है देन आई एम C3, डायरेक्ट हो गया ये, डायरेक्ट मैंने वैल्यू कर दिया उसका, सॉरी इनडायरेक्टली वैल्यू उठाएगा सर। हाँ, वो अभी मतलब बोलने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है कि जब तुम उसको बोलते हो ना M8, तो ये डायरेक्ट M8 में घुस के उसका वैल्यू उठाता है। लेकिन अगर मैंने यही चीज इनडायरेक्ट के थ्रू मदद से लिया, तो दिस इनडायरेक्ट फंक्शन अब एक्चुअली M8 में घुस रहा है, एंड व्हेन ही फाइंड C3, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ओके C3, तो इनडायरेक्टली इट विल जंप हियर, बाउंस होके इट विल गिव मी द एक्चुअल वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड इन C3। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ओवर हियर, तो ये C3 को चेंज हो रहा है। एंड नाउ यहां पे मैं बोलता हूं गो टू D4, व्हाट इज देयर इन D10, यू आर गेटिंग मी। इनडायरेक्ट रेफरेंस बोलते हैं, इसका फायदा आगे आपको बताऊंगा मैं और भी एग्जांपल्स के साथ में, हाउ ब्यूटीफुली बहुत जगह पे ये काम आएगा अपने को। सो यहां पे मैंने क्या किया, आई वांटेड टू राइट दिस फंक्शन, ये वाला, यहां पे मैंने ऑल डेटा बोला, डेटाबेस ओके, सेल्स बोल दिया, ये तो मेरा चल गया, राइट, और कंडीशंस में मैंने ये भी डाल दिया, और यहाँ पे सेल्स बोल दिया उसको, सेल्स क्या है ये, अच्छा जिस पे मुझे टोटल मारना है, और कंडीशन, तो यहाँ पे आ गया। मगर यहाँ पे देखो आप, तो इंस्टेड ऑफ लोकेशन आई वांटेड टू टाइप इनडायरेक्ट एंड
this one. So K1 में लोकेशन लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट फंक्शन बोलता है कि डोंट ट्रीट दिस एज लोकेशन, जस्ट गो टू लोकेशन है क्या, तो इनडायरेक्टली इट विल गो टू द नेम मैनेजर एंड गेट द रेंज ऑफ दिस वन एंड यू विल गेट नाउ द टोटल ओवर हियर, है ना। तो मैं इसका मल्टीपल करना चाहूंगा तो भी मैं इसको बोल सकता हूं कि नाउ कॉमा, अगेन बोलता है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है तुम्हारा, मैं बोलता हूं क्राइटेरिया रेंज 2 इज इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ दिस वन, ओके। और इसका क्राइटेरिया क्या है, ऐसे इसका क्राइटेरिया ये है, सो इट विल मैच टू कि इंडिया का डॉक्टर, सो यू कैन सी नाउ इट्स गिविंग मी दिस वैल्यू, इंडिया के डॉक्टर्स। आई होप यू गॉट दिस। तो एकदम साइलेंस था, फॉरगेट इनडायरेक्ट, अभी फिलहाल इनडायरेक्ट को माइंड से निकाल दो, ये समझा क्या मेरे को बताओ, that is very important. You all should know dsum, okay, how to write this, or name manager. I wrote all the names so that instead of ये all data लिखना पड़ा, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता था, A2 to I61, फिर यहाँ पे कंडीशन में बोलना पड़ता था from K2 to N2. So to avoid this I can do this, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि I can always do this wherever I am. So if you are over here also, और अब मैं इसको बोलता हूं कि I want to take the D sum करता हूं या D max करता हूं, he's asking me database क्या है, तो I say it's all data is my database. मुझे पूछता है what is the field, तो I can just give my field is say it's sales, उसका टोटल मारना है, मुझे बता क्राइटेरिया क्या है, ऐसे क्राइटेरिया इज माय कंडीशन, खत्म बात। सी, अब ये कौन सा शीट में था, आपको क्या करने का, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेमिंग रेंजेस। बट अगेन हर चीज के अंदर मुझे तकलीफ है, बताऊंगा बाद में। आप बोलोगे सर आपको तकलीफ ही तकलीफ है ना, मैं बता रहा हूँ ना, और तकलीफ रजत जी ने ही मुझे बताई है, मैंने नहीं बताया, रजत जी ने मुझे पूछा था ये बात, क्योंकि अभी ये जो मैंने बना दिया ये तो बना दिया, बट व्हाट इफ माय डेटा इंक्रीजेस, मेरे सारे नेम्स काम नहीं आने वाले। इफ एनीवन रिकॉर्ड इज इंक्रीज, मेरे सारे नाम फेल हो गए, राइट और रॉन्ग, बिकॉज आपके जो नाम है ना उसके अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग चल रहा है अंदर कहीं, तो कि जब आप लोकेशन को बुलाते हो तो अंदर से आवाज आती है F2 to F61, whenever you call sales अंदर से आवाज आती है B2 to B61। समझा क्या, क्या जरूरी है क्या जिंदगी भर 61 ही रहेगा, आगे बढ़ गया तो उधर गया 62 थोड़ी होने वाला है। तो जितना भी नाम रखा है ना वो सब बेकार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें खुश रहो, इसका पहले आनंद लो, इसका मुंह मीठा करो, थोड़ी देर मजा करो, इसको मुंह में घोलो थोड़ा, you will enjoy this delicious food। उसके बाद अपन उसको थूक देंगे and we will have better one। पहले इसका तो मजा लेते हैं ना, क्या बोलते हो, नया नया सीखा है तो यार इसका मजा लो आप, और दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं है, बट इसको तरीका अलग होगा करने का, that I will make you understand that। चलिए फिर मिलते हैं परसों, that is 25th। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। सर ये एक्सेल का कौन सा वर्जन है? हाँ जी, हेलो, ये एक्सेल का कौन सा वर्जन है जिस पर आप सिखा रहे हैं? ऑफिस 365 है शायद, ये एमएस ऑफिस का नहीं है, ये एमएस ऑफिस का नहीं है M365 क्या, वो ये वर्जन ना पूछ रहा है MS Office का M365। ये अभी विंडोज 11 है ना, मुझे 365 ही है, मेरे पास भी सेम है। हाँ ये दिखा रहा है लेकिन इस 365, मेरा भी सेम ही दिखाता है। हाँ वो थोड़ा मैंने 2016 है। ओके नहीं वो 365 है, वो अपडेट किया हुआ। ओके तो आपको बताऊंगा मैं क्यों 365 में क्या फीचर्स है जो यहाँ सर, पे मुझे भी सेटअप करना है इसको, इसलिए पूछ रहा था, वो मेरे पे 2007 है। डाउनलोड कर लो। ओके, तो सेटअप करने नहीं आता ना, इसलिए पूछ रहा हूं।
नहीं आप डाउनलोड कर सकते हो, गो टू दिस साइट। रिसर्च ओके है ना? जेंटिंग ओके वायरस फ्री है, थोड़ा गूगल अच्छा है, ज्यादा वायरस का झंझट नहीं इधर। और यू कैन डू दैट, और यू कैन गो टू अ लाइसेंस कॉपी आल्सो, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। फ्री कॉपी में भी चल जाएगा ना सर? हाँ आपको मिलेगा ना, है ना, फ्री कॉपी है ना स्टूडेंट्स लोग के लिए, ओके डेमो वर्जन है, आप यूज कर सकते हो। ओके सर ठीक है सर, ऑल ऑफ यू, ओके सर see you day after tomorrow, keep watching, don't lose hopes, we will learn good. ओके Bye, good गुड night. नाइट सर Right, sir.